So please make me co-host. Thank you, sir. Aditya Raj present. Aditya Tak absent. Ankita Meena present. Ansh Arora absent. Arpit Meena. Arpit Meena, this is your last warning. Enter into the class with a microphone option. Janvi, you are also not here with a microphone option. Next time, Arpit, I will not mark you present at all. Open your microphone option quickly. Ayushi Saini, present. Bhavyanshi, present. Vineet, present. Charu, present. Dimple Sharma, absent. Eklavya, absent. Gautam, absent. Harimohan, absent. Harshita, present. Hemant, present. Himanshu, absent. Ishika, present. Jay, present. Jayesh Raj, absent. Jyoti Shekhawat, absent. Kangana, absent. Kangana, you have misprint your name. I'm marking you present. And also enter with your full name. Kangana present. Kanishka, absent. Kushal, present. Kyati was here. Kyati was here. She wished me good morning. Must be some connectivity issue. Lakshya Jain, present. Mahika, absent. Manas, absent. Mohit, absent. Nihar, absent. Nitesh, present. Nitesh Parihar, absent. Pawan Singh, present. Piyush, absent. Pradyum, absent. Rahul, present. Ronit, present. Sakshi, absent. Sanskriti, present. Siddhi, present. Tarun, present. Vaibhavi, present. Vaishnavi, present. And Samriddhi, present. And Devyanshu, present. Now let's go to 8B. Abhishek, present. Aditya, present. Ansh Devra, present. Dimple Eliani, present. Divya Soni, present. Divyansh Kumawat, present. Divyansh Verma, absent. Diya, present. Harjeet, absent. Harshit, absent. Himanshu, absent. Ira, absent. Ishant, present. Janvi, present. Jessica, absent. Pavish, present. Keshav, present. Keshav, lots of classes. Krishna, present. Mahi, absent. Manali, present. Mohit,
Absent. Muskan. Absent. Why Muskan is not taking so many classes? Nitesh. Present. Pallavi. Absent. Riyanshi. Present. Riyanshu. Absent. Riya. Absent. Rohan. Present. Ronak. Present. Sneha. Absent. Soni. Absent. Sudhanshu. Present. Suhani. Absent. Sumit. Present. Yogesh. Present. And Gautam. Janvi and Magdi present, and Gautam. Is absent. Okay. Have I missed anybody? Raise your hands. Is there any other problem in adverb or verb? Divyanshu or Magdi present. If there is any doubt, then Mag present. Krishna and Magdi present. एक बार कोई बच्चा मुझे raise your hand if you can give me an example of adverb of frequency and adverb of degree. Who will give me an example? Explain the difference between adverb of degree and adverb of frequency. Raise your hands quickly. Nobody is answering? Give one sentence each of adverb of degree. Yes, Divyanshu, unmute yourself. Yes, ma'am. आप बताएंगे बेटा? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, in adverb of degree, ma'am, the adverb of frequency, ma'am, I can tell. हाँ बेटा बोलिए. Ma'am, example, we eat thrice a day, or ma'am, like thrice a day generally, sometimes, हाँ हाँ. often, never. Ma'am, like the ये क्या है? Adverb of frequency. very good. और adverb of degree क्या हो जाएगा? Complete, half. Much, a little, fully, partly. हाँ, very good. I'm very impressed, Divyanshu. Thank you. Siddhi, unmute yourself. Ma'am, adverb Yes. of degree, she almost lost the child in the crowd. Okay. She almost. ठीक है. I am too tired to go out now. नहीं, too tired में number 2 नहीं है, T-O-O-2 है. Yes, ma'am. तो ये क्या है? Adverb of Adverb of degree. हाँ. अब एक frequency का बता दीजिए sentence. I usually read the books in the school bus. Okay, usually. Very nice, Siddhi. I'm very impressed. आप regular नहीं भी है classes में, फिर भी आप बहुत अच्छे से आंसर दे रही हैं. Very nice. Thank you, ma'am. Please try to come regularly in the classes also. पवन, चलिए आपसे कुछ और पूछेंगे. Message writing क्या होता है? We have studied message writing. Yes, Ishant, I used to eat food thrice a day. अभी दिव्यांशु ने भी यही बोला था. This is good example. And message writing के बारे में कौन बताएगा? Yes, Aditya, adverb of degree है. Jug is almost full. Yes, very good. पवन, आप बताना चाह रहे हैं message writing के बारे में? Unmute yourself. यस मैम. मैसेज राइटिंग में वो स्पेसिफिक मैसेज देता है और वो ज्यादा होता नहीं उसमें, वो 5 लाइन सारा मैसेज कवर कर दे देता है और वो स्पेसिफिक देता है. Speaker is slow. Madam is slow to understand. दोबारा से बोलिए.
मैम जो मैसेज राइटिंग में ना 5 लाइन का मैसेज होता है वो कंप्लीट पैराग्राफ को डिस्क्राइब कर देता है कि ये यहाँ जाना है, यहाँ आना है। जैसे अच्छा, कि मैसेज राइटिंग पैराग्राफ फॉर्म में होता है और पास्ट टेंस में बता देता है। ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू। Can anybody give me a format also? Bhavyanshi, you want to speak always? Yes, unmute yourself. मैम मैं मैसेज राइटिंग बता रही थी। हाँ, बताइए। Ma'am, a message in a short piece of information that is written for someone who you are unable to speak for reason. The main point of conservation should be incorporated in the message. You're giving a very bookish explanation. I just wanted to know what you have understood. I'm not looking for a definition. Yes, somebody has written. Tarun is written. It's nothing but tells us specific information or occasion or anything. Yes. Message writing is to write message. Priyanshi, very good. Nobody remembers the format. Okay. Let us take one more student. Kavish, unmute yourself. It's so long that I have not heard your voice. Yes, ma'am. Yes, good morning, Kavish. Good morning, ma'am. So, what do you want to say about message writing? Ma'am, format. Yes, बताइए. Ma'am, हमें सबसे पहले date, then name of the person, मैम जो लिख रहा है उसका नाम, जिसको लिख रहे हैं तुम, जिसको लिख रहा है उसका नाम, फिर डियर करके फिर आगे जिसके बारे में जिसके लिए है उसको, और फिर बॉडी, मैम लास्ट में सबसे योर नेम, जो लिख रहा है उसका नाम. मैम. वेरी गुड. नहीं, एड्रेस नहीं है ईशांत इसमें, नॉट अ लेटर. सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो सब किसी ने भी मेंशन नहीं किया. थैंक यू कविश, वेरी नाइसली सेड. आपने बस डेट के साथ टाइम भी होता है. दिव्यांश कुमावत, लास्ट चांस, अनम्यूट योरसेल्फ. यस दिव्यांश. Ma'am, at the top message, then date, then time, then salutation, and topic of the message, body, and then written by whom. वेरी गुड. इसमें बस एक प्रॉब्लम है, इसमें टॉपिक नहीं है, सीधे ही मैसेज लिखना है. इट्स अ शॉर्ट लेटर विदाउट एनी टाइटल. Okay, ma'am. Yes, Siddhi has given the most important point. The message is always in the box. So very good. I think most of you remember last year's writing. So let me just quickly share the document. Tarun, please lower down your hands. अभी आपसे next question पूछेंगे, ठीक है? Let me share the document with you. सबसे पहले तो मैसेज राइटिंग में क्या होता है कि किसी के लिए मैसेज अपन लिख रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि वो उस वक्त वहां प्रेजेंट नहीं है. तो पहली बात तो ये है कि वो व्यक्ति उस वक्त जब ये बात हो रही है तब वहां प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसको मैसेज लिखना पड़ रहा है आपको. तो जो इवेंट हुआ है, फर्स्ट मेंशन किया था कि उसको पास्ट टेंस में लिखना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है और मैसेज को अपन को पास्ट टेंस में लिखना है, क्योंकि जब ये बात हुई थी तब वो व्यक्ति वहां पे प्रेजेंट ही नहीं था. शॉर्ट में लिखेंगे. देखिए इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है. मैं एग्जाम में भी आपको 5 नंबर का दूंगी मैसेज राइटिंग, या प्रोपोर्शनेटली दूंगी, यही प्रोपोर्शन रहेगा. आपके कंटेंट के इसने सिर्फ 2 मार्क्स दिए हैं और फॉर्मेट में 3 मार्क्स दिए हैं. तो ध्यान रखिए, आप बड़ा पैराग्राफ लिखेंगे और फॉर्मेट पे ध्यान नहीं देंगे तो नंबर कम मिलेंगे. फॉर्मेट में क्या क्या चीज आती है? डेट आता है, टाइम आता है, सैल्यूटेशन मतलब जिसको आप लिख रहे हो, डियर ब्रदर या डियर फादर, जिसको आपने मैसेज लिखा है, और राइटर नेम सिग्नेचर मतलब जिस नाम से आपको अपना लिखना है. कभी कभी क्वेश्चन में आपका नाम दे रखा होता है. तो प्रपोर्शन मार्क्स का यही रहेगा. आपको नंबर मिलेंगे डेट के, टाइम के, हेडिंग मतलब जो एड्रेसी है उसके लिए, और एड्रेसर मतलब जो लिख रहा है उसके लिए. देखिए 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. सॉरी,
पहला क्वेश्चन है कि कोई डायलॉग, कोई कन्वर्सेशन आपको दे दिया। अब यहाँ दो जनों के बीच में बात हो रही है, मिसेस पुरोहित और पहले आपको कन्वर्सेशन समझना है, फिर इसका मैसेज समझेंगे अपन। मिसेस पंडित ने कहा हेलो, शिखा ने कहा हेलो, मतलब ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। हेलो, आई एम शिखा, रूना's फ्रेंड, कैन आई स्पीक विथ हर प्लीज। शिखा ने फोन किया उसके रूना को घर, और रूना की मदर ने उठाया। तो इसने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं रूना के फ्रेंड शिखा बोल रही हूँ, मुझे रूना से बात करा दीजिए। मिसेस पंडित ने बोला आई एम रूना's मदर, शी इज नॉट होम, शी हैज गॉन आउट विथ हर फादर टू बाय सम बुक्स। अब मिसेस पंडित ने कहा, उसकी मदर ने कहा कि मैं उसकी माँ बोल रही हूँ, वो भी घर पर नहीं, अपने फादर के साथ कुछ किताबें लेने गई हुई है। शिखा ने बोला ओह आंटी, वुड यू प्लीज टेक अ मैसेज फॉर हर। ये उस टाइम की बात है जब घर पे लैंडलाइन फोन्स हुआ करते थे, सबके पास अपने पर्सनल मोबाइल नहीं होते थे। तो मैसेज टेकिंग है ये मोबाइल कल्चर से पहले का। तो आपको फिर भी ये लिखना आना चाहिए। अभी तो हर एक का पर्सनल मोबाइल होता है, आप सीधे उसको मैसेज कर सकते हैं या सीधे बात कर सकते हैं, बट दिस इज फॉर दैट पर्पस कि जब वो पर्सन यहाँ पर नहीं है। तो इसने कहा कि आप प्लीज मेरा मैसेज ले लेंगे। उन्होंने कहा हाँ ले लेंगे। मिसेस पंडित श्योर शिखा। शिखा said okay, I had borrowed a novel from her and I was to return it by the end of this week. मैंने रूना से एक नॉवल लिया था, बोरो किया था मतलब उधार लिया था, मतलब पढ़ने के लिए लिया था, और मुझे इस हफ्ते में उसको वापस करना था। बट इट सीम्स आई वुड फिनिश रीडिंग इट ओनली बाय नेक्स्ट वीक। पर ऐसा लगता है कि अब मैं उसको खत्म नहीं कर पाऊंगी, एक हफ्ता मुझे और उसमें लगेगा फिनिश करने में। सो आई विल रिटर्न द नॉवल देन, आई एम श्योर शी वुड अंडरस्टैंड। इसलिए मैं ये नॉवल उसको अगले हफ्ते दूंगी, मुझे यकीन है कि वो समझ जाएगी। मिसेस पंडित said yes that's okay, I will give your message to her. उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, मैं उसको बता दूंगी। शिखा थैंक यू सो मच आंटी, बाय। मिसेस पंडित बाय। तो ये एक टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हुई है। आइए देखिए, अब उसकी मदर को कहीं बाहर जाना था। As Mrs. Pandit was going out herself, she wrote the message for Runa. मैसेज तब लिखते हैं जब आप मैसेज देने के लिए उस व्यक्ति के सामने नहीं है, वरना आपको लिखने की क्या जरूरत है, आप ओरली बता सकते हैं। मतलब जब ये बात आई तब जिसके लिए मैसेज था वो था नहीं, और जब वो वापस लौटेगा तब तक आप नहीं होंगे उस जगह पर, इसलिए आपको एक रिटन मैसेज छोड़ के जाना है। पहला कंडीशन है मैसेज एक बॉक्स में होता है और टॉप सेंटर में लिखा होता है मैसेज, कैपिटल में लिखा हुआ है मैसेज, जिसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फिर लेफ्ट टॉप में होता है डेट और टाइम, उसके बाद जो एड्रेसी है मतलब जिसको अपन को लिखना है उसका नाम, लास्ट में जिसने लिखा है उसका नाम। अब मैं तरुण लिख रही हूँ ये मैसेज, तो मैं नीचे नाम तरुण नहीं लिखूंगी। क्वेश्चन में स्पेसिफिक है कि आप उसकी मदर हैं, तो आप उसकी मदर के नाम से ही लिखेंगे, योर मदर करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो मदर अपनी मम्मी को मम्मी बोलेगी, तो बस आप नीचे साइन में मम्मी लिखेंगे। अब मैसेज सिर्फ 2 लाइन का है। शिखा called to inform you that she would be able to return the novel she had borrowed from you only next week instead of the end of this week. शिखा ने फोन करके तुम्हें ये बताया है कि वो अपना नॉवल जो उसने तुमसे लिया था वो अगले हफ्ते ही लौटा पाएगी, इस हफ्ते नहीं। तो ये उसका इस तरह से मैसेज है। कंटेंट अगर बॉक्स में नहीं हुआ तो नंबर कटेंगे, टॉप में अगर आपने मैसेज नहीं लिखा तो नंबर कटेंगे, डेट टाइम नहीं लिखा तो नंबर कटेंगे, लिखने वाले का नाम, लिख जो रहा है वो नाम। अगर क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं करा है कि आपका क्या नाम है, तो आप जो चाहे इमेजिनरी नेम लिख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि आप जिसको मैसेज लिख रहे हो उसका नाम क्या है, सिर्फ लिख दिया योर ब्रदर, योर सिस्टर, तो आपको इमेजिन करके यहाँ नाम लिखना है, या डियर ब्रदर डियर सिस्टर भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं। पर जो क्वेश्चन में लिखा है उसके लिखने होने के बाद भी अगर आपने कुछ और लिखा तो नंबर कट जाएंगे। जैसे क्वेश्चन में लिखा है योर ब्रदर राकेश, और फिर भी आप राकेश नहीं लिखेंगे, सुरेश लिख देंगे, तो नंबर कट जाएगा। या तो आप डियर ब्रदर लिखिए या आप राकेश लिखिए।
इसी तरह से क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है कि आपका क्या नाम है, और फिर भी आपने वो नाम न लिखकर जल्दीबाजी में अपना खुद का नाम लिख दिया तो नंबर कटेगा। तो यू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू आर राइटिंग। ये आपकी बुक में इसके रूल्स दे रखे हैं, प्लीज गो थ्रू दैट, वेरी सिंपल। दिस इज वन अनदर एग्जाम्पल। इस फॉर्मेट में एक गलती है बस, इस फॉर्मेट में टाइम अलग साइड पर लिखा हुआ है, आपको डेट के नीचे ही टाइम लिखना है, बॉक्स में होना चाहिए। यस सिद्धि, वेरी गुड पॉइंट। अगर आपसे बड़ा जना है कोई तो आप रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हैं, बट ये थोड़ा क्या होता है, लेटर जितना फॉर्मल नहीं होता है, मैसेज इज वेरी पर्सनल एंड वेरी इनफॉर्मल। तो आपको डियर फादर से ही काम चल जाएगा, रिस्पेक्टेड फादर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ इट इज एन अथॉरिटेटिव क्वेश्चन कि आपको टीचर को लिखना है मैसेज या प्रिंसिपल को लिखना है, या इस तरह का कोई है कि आपके रिलेटिव है, अंकल है, तो उनके लिए लिखना है तो आप फॉर्मल लिख लीजिए। फादर मदर ब्रदर में डियर चल जाता है। फॉर्मेट होना चाहिए बॉक्स में, टॉप सेंटर कॉर्नर में मैसेज, डेट टाइम लेफ्ट हैंड साइड में होगी। इस ये पुरानी फॉर्मेट है, इसमें टाइम अलग लिखा हुआ है। पहले एड्रेस ही जिसको आप लिख रहे हैं, फिर बॉडी, बॉडी मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, या फिर वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी। ज्यादातर क्वेश्चन अपन इस तरह से लिखते हैं, यू आर रवि, यहाँ पे बता दिया आपका नाम रवि है, तो अपने नाम से ही नहीं लिखना, सिर्फ रवि के नाम से लास्ट में लिखेंगे। यू रिसीव्ड अ कॉल इन द मॉर्निंग फ्रॉम मिस्टर अनिल भट्टाचार्य। एडवर्ब आदित्य बुक में भी करना है, वर्क बुक में भी और कॉपी में भी करना है। ये जो है मैं पढ़ा रही हूँ, इसको कोई नहीं लिखेगा, आप लोग सिर्फ एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस करें। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको एक फोन आया, किसका, मिस्टर अनिल भट्टाचार्य, तो आपके फादर के असिस्टेंट है। योर फादर हैड गॉन फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मिस्टर भट्टाचार्य वांटेड टू कन्वे टू योर फादर दैट ही कुड नॉट गो टू द ऑफिस फॉर टुडे, गलत है यहाँ पर, फॉर टुडे as he has a sprain in his foot। अब फोन करके भट्टाचार्य ने आपके फादर से बात करनी थी, लेकिन आपके फादर मॉर्निंग वॉक पे गए हुए हैं। अब यहाँ ध्यान रखिए टाइम, क्योंकि ये फोन आया है मॉर्निंग वॉक के टाइम, तो आप सुबह का ही टाइम लिखेंगे। जब आपको डेट लिखनी है, डेट आप एग्जाम वाले दिन की लिख सकते हैं, या जिस दिन आपको क्लास वर्क होमवर्क कराया उसकी डेट लिख सकते हैं, लेकिन टाइम का ध्यान रखिए, जो कंटेक्स्ट है उसी का टाइम होना चाहिए। मॉर्निंग वॉक के टाइम फोन आया है तो सुबह 6, 7, 8, इससे लेट नहीं। मिस्टर भट्टाचार्य वांटेड टू कन्वे, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि उनके पाँव में मोच आ गई, स्प्रेन मतलब मोच, उनके पाँव में मोच आ गई और वो आज ऑफिस नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो चल भी नहीं पा रहे। He will submit the leave application when he joins back after the leave। और लीव एप्लीकेशन वो अभी नहीं भिजवा रहे, जब वो वापस ऑफिस आएंगे तब लीव एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। अब आपको मैसेज लिखना है, रेज योर हैंड जो इसका मैसेज बता पाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके बारे में फॉर्मेट बताइए, फिर कंटेंट बताइए। दिव्यांशु, आई थिंक यू स्पीक टुडे, समबडी एल्स। दिव्यांशु, महावत ने भी बोल दिया, कविश ने भी बोल दिया, जिसने नहीं बोला है अभी तक वो रेज करिए अपना हैंड। क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। आपके फादर मॉर्निंग वॉक पे गए हुए थे, पीछे से एक फोन आया उनके असिस्टेंट का कि वो आज ऑफिस नहीं आ सकते, उनके पाँव में चोट लग गई है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब वो ऑफिस वापस ज्वाइन करेंगे तब वो आपको लीव एप्लीकेशन दे देंगे। ये मैसेज देना है आपको। डेट बताएंगे, टाइम बताएंगे, नाम बताएंगे। ईशांत wants to say, Ishant has always a perfect answer. I want to see if anybody else can also give. Nobody, no girl is willing to say. गलत बता दो, बताओ तो सही। Tarun, unmute yourself. Yes, ma'am. आप कोशिश करेंगे। Yes, ma'am. सबसे पहले क्या बनाना है अपन को? Ma'am, box.
3 साइड का बॉक्स बनाएंगे, मतलब बॉटम लाइन नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं अपन कितना बड़ा मैसेज लिखेंगे। जब मैसेज कंप्लीट हो जाएगी तब नीचे की लाइन बनाएंगे। यस, 3 लाइन का बॉक्स बना दिया। फिर मैम फिर ऊपर हमें मैसेज डालना है। ठीक है, मैसेज लिखेंगे सेंटर टॉप में। फिर टाइम, बताइए टाइम, पहले टाइम पहले डेट। मैम मैम डेट तो लेफ्ट साइड और टाइम राइट साइड। नहीं, दोनों लेफ्ट साइड आएगा। डेट क्या लिखेंगे? मैम मैम जिस दिन मैसेज लिखने हैं। हाँ, आज की डेट है 24। 24 क्या सितंबर। लिखेंगे? 24 सितंबर। वेरी गुड। 24 PH लगाएंगे, सितंबर, फिर कॉमा 2020। फिर टाइम क्या लिखेंगे? मैम 9:30। नो मैम, 9 मैम मॉर्निंग। 7:30 to 6 AM 6 AM। 6 AM। ठीक है, 6 AM। AM PM का ध्यान रखेंगे, 12 बजे से पहले AM होता है, 12 बजे के बाद PM। फिर क्या लिखेंगे? मैम फिर डायरेक्ट बॉडी। नहीं, आपने अपने फादर को लिखा नहीं, डियर फादर या डियर पापा, जो भी आप बोलते हैं। यस किसको मैम। लिखते हैं? हाँ, डियर फादर। यस, मैम शांत बैठ। देन सैल्यूटेशन के बाद बॉडी। बॉडी में क्या लिखेंगे आप? मैम in the morning go when you go to morning walk, Mr. Anil हाँ, Bhattacharya called you to inform that he can't able to he would not reach office today because he had a sprain in his foot. Thank you, well tried. Let us give Ishant one chance. Very nice, well effort. Ishant, unmute yourself. Body से शुरू करिए। Father, your assistant, Mr. Ravi, has just called me and asked you to say that he will not able to go to office today as he has sprain in his foot and he can't even walk. He has told me that he will submit the leave application after he joins after leave. लास्ट में क्या होगा? लास्ट में एक लाइन छोड़नी है, फिर एड्रेसर का नाम लिखना है। क्या है एड्रेसर का नाम? एड्रेसर का नाम ईशांत, नहीं रवि। रवि। यस सर, रवि होगा क्योंकि ईशांत लिखा तो गया। और उसके बाद क्या करेंगे? सिग्नेचर। ये तो हो गया रवि। उसके बाद क्या करेंगे? इसमें साइन नहीं करना, बस नाम लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे? वी विल क्लोज द बॉक्स, क्योंकि बॉक्स कंप्लीट नहीं करा था अपन ने। द बॉटम लाइन। यस तरुण, वेरी गुड। थैंक यू ईशान, वेल ट्राइड। प्लीज लोअर डाउन योर हैंड्स। देखिए, इसमें टाइम गलत साइड है, अपन लेफ्ट साइड ही लिखेंगे। सबसे पहले बॉक्स बनाया 3 साइड का, फिर टॉप में मैसेज लिखा, फिर डेट लिखी। इसी फॉर्मेट में लिखना है, पहले नंबर, फिर TH या RD जो भी नंबर है, फिर महीना, फिर कॉमा, फिर ईयर। उसके नीचे टाइम AM PM के साथ। डियर फादर, today morning when you had gone for a morning walk, Mr. Bhattacharya, your assistant, called up to inform that he would be on leave today as he sprained his foot. फिर दूसरी बात के लिए उसने पैरा चेंज कर दिया। आप चाहें तो पैरा चेंज करें या उसी में कंटिन्यूएशन में लिखें। He will present his leave application when he resumes his duty, Ravi, and then close the box. So this is an easy format. अब देखिए, एक्सरसाइज है आपकी B23। अब इसमें भी एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। अब यहाँ एक लड़की है दिव्या, उसने फोन करा है, और एक लड़का है एल्बर्ट, उसने उठाया है फोन। आइए देखिए क्या बात कर रहे हैं। प्लीज लोअर डाउन योर हैंड्स। दिव्या सेड, हेलो, इज इट 4502968? पहले के टाइम में क्या होता था कि नंबर दिखाई नहीं देता था। जो लैंडलाइन होता था, प्रोबेबली आप लोगों ने शायद यूज भी नहीं किया हो। हम लोग जो होते थे तब बहुत यूज करते थे। वी वर वेरी फैसिनेटेड विद लैंडलाइन फोन्स।
तब क्या होता था कि जब अक्सर रॉन्ग नंबर हो जाता था क्योंकि डायल करने में गड़बड़ हो जाता था, तो पहली चीज ये होती थी कि अगर आप आवाज नहीं पहचान रहे तो नंबर कंफर्म करना होता था। तो उसने नंबर कंफर्म किया क्योंकि ये पहली बार बात कर रही थी यहाँ पे, तो उधर से एल्बर्ट ने उठाया, बोला यस इट इज, हाँ ये नंबर सही है। दिव्या said, may I speak to Cathy please? I am her classmate दिव्या। दिव्या ने कहा कैटी से बात कर सकती हूँ क्योंकि मैं उसकी क्लासमेट बात कर रही हूँ। एल्बर्ट ने कहा हेलो दिव्या, इट इज एल्बर्ट, कैटीज ब्रदर। अब देखिए यहाँ ग्रामेटिकली रॉन्ग है, इन ह्यूमन बींग्स के लिए नॉर्मली इट यूज नहीं करते, लेकिन जब कन्वर्सेशन में इंट्रोड्यूस कराते हैं सेल्फ को तो इट का प्रयोग होता है। आई एम की जगह इट्स बोल सकते हैं, इट इज बोल सकते हैं। तो उसने कहा हेलो, मैं एल्बर्ट बोल रहा हूँ, मैं कैटी का भाई बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी कैटी इज नॉट एट होम मोमेंट, शी इज गॉन टू अटेंड आवर कजिन्स वेडिंग एट शिमला एंड विल कम बैक लेट एट नाइट, इज देयर एनी मैसेज फॉर हर? उसने कहा कि अभी तो कैटी घर पर है नहीं, वो मेरे कजिन की शादी में गई हुई है आउट ऑफ स्टेशन और वो रात को देर से लौटेगी। क्या कुछ खास बात थी, कोई मैसेज देना था? दिव्या said, yes Albert, actually today is the last day for submission of the English project file. My file is lying with her. She must bring it to school tomorrow positively, otherwise I may have to pay a fine of ₹200. दिव्या ने कहा लोअर डाउन योर हैंड का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिव्यांश, कविश, प्लीज lower down your hand. I'm not asking any questions. Very nice, Kavish, if you have used the landline. अब दिव्या ने कहा कि आज इंग्लिश के प्रोजेक्ट को सबमिट करने का लास्ट डे था और मेरी जो इंग्लिश प्रोजेक्ट की फाइल है वो कैटी के पास है, लाइंग विथ हर मतलब उसके पास पड़ी हुई है, और अगर मैंने कल भी सबमिट नहीं करा तो मुझे फाइन देना पड़ेगा 200 रुपीज। तो उसको बोलिए कि हर हाल में पॉजिटिवली मतलब पक्के से वो कल ये इंग्लिश प्रोजेक्ट फाइल स्कूल लेकर आए। एल्बर्ट, ओके, आई विल डेफिनेटली कन्वे योर मैसेज टू हर। एनीथिंग एल्स? एल्बर्ट ने कहा मैं पक्के से बता दूंगा, कुछ और भी कहना है क्या? दिव्या, यस, ऑल्सो टेल हर टू ब्रिंग हर साइंस नोटबुक, इट इज ऑल्सो टू बी चेक्ड टुमारो। उसने कहा कि हाँ उसको एक चीज और बता दीजिएगा, अगर कल वो अपनी खुद की साइंस की कॉपी लेकर आए क्योंकि कल साइंस की कॉपी भी चेक होगी। एल्बर्ट, ओके बाय। दिव्या, बाय। अब एल्बर्ट को एक मैसेज लिखना है अपनी बहन कैटी के लिए क्योंकि ये अब सोने जा रहा है और कैटी उसके पेरेंट्स के साथ देर से लौटेगी। तो ये करीबन 80 वर्ड्स का एक मैसेज लिखना है हमको। आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, मैंने एक आउटलाइन आपको बना के दी है, आप चाहे तो वो यूज कर लीजिए, चाहे आप अपने सेंस में बना लीजिए। तो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये मैसेज का फॉर्मेट है, पहले बात तो ये बैक बॉक्स में होना चाहिए। ये जो छोटी लाइंस बनाई है मैंने, ये एक एक लाइन का गैप है, इसका मतलब है गैप है। डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, फिर गैप है, फिर एड्रेस ही जिसको आप लिख रहे हो वो, फिर गैप है, बॉडी, बॉडी पैराग्राफ फॉर्म में होगी और पैराग्राफ यहीं से शुरू होगा। फिर एक लाइन छोड़ के एड्रेसर यानी कि जो एड्रेस कर रहा है। D23 का आंसर है, ये बॉक्स बनाया है मैंने, पहले तो लिखा है आज की डेट डालिए, आप जो चाहें वो डेट डाल दीजिए। क्योंकि फोन शाम को आया होगा और वो अभी सो जाएगा, वो लोग देर रात को आएंगे, तो शाम का टाइम डालिएगा कोई। मैंने 7 PM डाला है, आप जो चाहें डालें। डियर दिव्या या डियर सिस्टर, सॉरी दिव्या नहीं आएगा, यहाँ कैटी आएगा, आई रॉन्गली रिटन दिस। डियर कैटी या डियर सिस्टर आएगा, फिर एक लाइन का गैप छोड़िए, मैंने गैप नहीं दिया है। आप लिखेंगे योर क्लासमेट दिव्या कॉल्ड टू रिमाइंड यू to bring her English project file tomorrow to school as it is the last day of submission, or else she would pay fine. तुम्हारी क्लासमेट दिव्या का फोन आया था कि तुम उसकी इंग्लिश का प्रोजेक्ट फाइल कल स्कूल ले जाना वरना उसको फाइन पे करना पड़ेगा। फिर सेकंड पॉइंट के लिए सेकंड पैराग्राफ में लिखा है she also wants you to remember to bring your science notebook for checking. उसने ये भी कहा है कि याद रखना कि कल तुम्हें उसकी साइंस की
कॉपी लानी है चेकिंग के लिए, और लास्ट में एक लाइन छोड़ के लिखो एल्बर्ट। एल्बर्ट आपका अपना नाम था। इसमें किसी को कोई डाउट है तो क्विकली रेज योर हैंड और राइट इट इनटू द चैट बॉक्स। इस फॉर्मेट में 2 मिस्टेक है मैंने जो बनाया है, एक तो नाम दिव्या नहीं होगा, कैटी होगा, या सिस्टर लिख लीजिए। दूसरा मैंने लाइंस नहीं छोड़ी है, आप लोग गैप में लाइन छोड़ेंगे। डियर के बाद लाइन है और एल्बर्ट से पहले एक लाइन है। आप अपनी भाषा में भी इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये लैंग्वेज यूज करें, चाहे तो आप अपनी बना के यूज कर। डेट टाइम एक साथ लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम समृद्धि, लेकिन टाइम और डियर के बीच में गैप होगा, डियर और बॉडी के बीच में गैप होगा, और बॉडी और में नेम के बीच में भी गैप होगा। डेट टाइम आप एक साथ लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। Is it clear to everybody? Any doubt? Let us just take one more exercise. You can answer this one. अब एक्सरसाइज B24 देखिए। अब इसमें कन्वर्सेशन नहीं है, इसमें सिर्फ स्टेटमेंट दे रखा है। आइए देखिए क्या लिखा है। यू आर सौरभ। अब इसमें सौरभ आपका नाम दे रखा है, मतलब मैसेज के बॉटम में आपको अपना नाम नहीं लिखना, सौरभ लिखना है। वर्किंग फॉर पावर सप्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप किसमें काम करते हैं? पावर सप्लाई इंडिया पावर लिमिटेड में काम करते हैं। You have an important meeting with the delegates. Delegate होते हैं वो लोग, नॉर्मली इंटरनेशनल ऑफिशियल्स होते हैं, उनको डेलीगेट्स कहा जाता है। आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है उन डेलीगेट्स के साथ जो कि जापान से आ रहे हैं। आपकी कंपनी और जापानीज कंपनी के बीच में कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आपको अपनी तरफ से रिप्रेजेंट करना है, और जापान से कुछ लोग आए, उनसे आपकी बहुत जरूरी मीटिंग है। But you have forgotten your important documents in your room. लेकिन आप अपने कमरे में कुछ important कागज भूल गए हैं जो आपको इस मीटिंग में शायद जरूरत पड़े। So you are going to send the peon to collect the documents. इसलिए आपने अपने ऑफिस में जो पियोन होता है, जो फाइल्स इधर से उधर ले जाता है, चाय पिलाता है, वेट कराता है लोगों को, उस स्टाफ मेंबर को आपने अपने घर भेज दिया है वो डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए। उसके साथ में आपने एक मैसेज लिख के भेजा है, राइट अ मैसेज योर ब्रदर। घर में आपका भाई होगा तो उस भाई के लिए मैसेज लिखा है, क्योंकि ऐसे घर में आ जाएगा और आपका भाई आपका सामान तो कैरी कर नहीं सकता, या तो आप उसको फोन करके बोलें या आप लिख के भेजें। तो आपने एक छोटा मैसेज लिख के भेजा है, टेलिंग हिम टू गिव द डॉक्यूमेंट्स टू द पियोन, और उसमें आप लिख रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट पेपर्स जो है वो पियोन को दे दो ताकि उसकी मीटिंग में प्रॉब्लम ना आए। अब इस मैसेज को एक बॉक्स में लिखिए। Now raise hand who will try and help me solve this question. जिसने पहले आंसर दे दिया है वो रेज मत करिए हैंड, जिसने अभी तक नहीं दिया है। ओके कृष्णा, यू वांट टू ट्राई? कृष्णा, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग कृष्णा, बोलो बेटा। मैम पहले हम अनबॉक्स बॉक्स बनाएंगे। पहले आप बॉक्स बनाएंगे 3 साइड का, ठीक है? यस मैम। उसके अंदर पहले टॉप ऑफ मिडल मैसेज लिखेंगे। सबसे पहले आप मैसेज लिखेंगे कैपिटल में, उसको अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है? फिर मैम उसके बाद हम डेट लिखेंगे आज की। किस फॉर्म में लिखेंगे? किस तरह से लिखेंगे बोल के बताइए। हम डेट लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे। डेट किस तरह से लिखेंगे? 24 9 लाइन 20 इस तरह से लिखेंगे? नो मैम, बीच में 0 आएगा। 24/09/2020। ठीक है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब 24 नंबर, फिर TH 24, फिर सितंबर वर्ड्स में लिखेंगे, कॉमा 20 इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आप स्लैश लगा के भी लिख सकते हैं। वेरी गुड। टाइम क्या लिखेंगे? टाइम 10 AM। 10 AM, ठीक है, क्योंकि अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है तो सुबह का ही टाइम है, और आपको ऑफिस जाते ही याद आ गया कि आप पेपर घर भूल आए। ठीक है, सुबह का टाइम रहेगा, ऑफिस खुलने के बाद और मीटिंग होने से पहले। यस, 10 AM, ठीक है। फिर क्या करेंगे? मैम क्या? उसके बाद क्या करेंगे? आफ्टर टाइम व्हाट विल यू राइट? मैम बॉडी। इधर बॉडी, आप कुछ सैल्यूटेशन नहीं करेंगे, जिसको लिख रहे मैम चिट्ठी उसको नहीं।
डियर ब्रदर। डियर ब्रदर लिख देंगे, ठीक है। फिर बॉडी में मैम क्या लिखेंगे? इन माई रूम आई नॉट ब्रॉट माई पेपर्स, प्लीज ब्रदर सेंड मी माई इम्पोर्टेंट पेपर्स टू पियोन। नहीं, थोड़ा सा ग्रामर आप बोलेंगे, आई हैव फॉरगॉटन माई पेपर्स इन माई रूम, प्लीज सेंड दोज पेपर्स विद द पियोन। ये ठीक है। यस मैम। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट? लास्ट में मैम लास्ट में नेम लिख देंगे क्या नाम सौरभ है? का। सौरभ। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर मैम लास्ट क्लोज द बॉक्स। वेरी गुड कृष्णा, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, आपने पॉइंट्स कवर कर लिए। क्लोजिंग द बॉक्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मैसेज वी फॉरगॉट टू क्लोज आवर बॉक्स। बॉक्स जब तक बॉटम लाइन नहीं होगी वो बॉक्स नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ मार्जिन कहलाएगी। somebody else want to add anything? किसी और को कुछ और बॉडी में कुछ और चेंजेस करने हैं इसमें? काविश? Yes, Kavish, unmute yourself. मैम Yes, beta. Yes, speak up, Kavish. मैम इस बॉडी के अंदर मैम पूरी बता दूं? हाँ हाँ बताइए। मैम सबसे पहले हम टाइम लिखेंगे, उसके नीचे टाइम हाँ 9 o'clock, ठीक है, 9 o'clock ठीक है। डेट टुडेज डेट 24/9/2020। ठीक है, डेट पहले आएगी, टाइम बाद में आएगा। मैम सबसे टॉप के ऊपर मैसेज लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। Then what? Come to the body. Next what? Can you please send the documents with the peon? Yes, Priyanshi. Kavish not answering. Sorry, Kavish, your voice is breaking up. चलिए, I had made couple of changes over here. एक दो चीजें मैंने करी हैं चेंज इसमें। I have imagined, पहली बात तो मैंने इमेजिन करा है अपने भाई का नाम, तो मैंने डियर की जगह उसका नाम यूज करा है। दूसरी चीज मैंने इमेजिन करी है कि स्पेसिफाई करा है कि वो पेपर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ रखे हैं। मैंने बोला है कि वो येलो कलर के फोल्डर में है और किस टेबल पे रखा है, ये मैंने बताया है। और तीसरी चीज जो मैंने इमेजिन करी है, वो मैंने पियोन को पियोन नहीं लिखा है, मैंने उसको एक नाम दिया है। वो मेरे अपनी इमेजिनेशन से कोई सा भी एक नाम दे दिया है। आप चाहें तो उस तरह से लिखिए, आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में लिखिए। देखिए, सबसे पहले तो 3 साइड का बॉक्स बनेगा, सेंटर टॉप में मैसेज आ गया, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे पहले तो डेट लिखिए। इसमें डेट कोई से भी लिख सकते हैं, मैंने दिया है 9 अप्रैल 2020। फिर मैंने टाइम दिया है 9 AM। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखा है, डियर सिद्धार्थ, आई हैड गिवन अ नेम टू माय ब्रदर व्हिच इज पॉसिबल यू कैन चेंज। फिर उसके बाद बॉडी में मैंने लिखा है कि सिंस दिस इज इम्पोर्टेंट मीटिंग, तो उसको पता होगा फैमिली मेंबर्स को, एज यू ऑलरेडी नो दैट टुडे आई have a very important meeting in my office with delegates from Japan. तो जैसा कि तुमको पता है कि आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है जापान से जो लोग आ रहे हैं उनके साथ, बट आई हैव फॉरगॉटन सम इम्पोर्टेंट पेपर्स एट होम। लेकिन मैं कुछ पेपर्स जो थे वो घर पे भूल आया हूँ। दे आर इन अ येलो फोल्डर ऑन माई डेस्क। अब ऐसे लूज पेपर्स वो कैसे ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा? तो उसको स्पेसिफाई कर दिया है कि वो एक येलो कलर के फोल्डर में है और मेरे जो स्टडी डेस्क है उस पर रखी है। अब दूसरा बात के लिए मैंने पैरा चेंज करा है। आप चाहे तो कंटिन्यूशन में लिखें, पर जब दो बातें हो रही होती हैं तो आप पैरा चेंज कर सकते हैं। प्लीज गिव दैट फोल्डर टू मिस्टर राम प्रसाद। अब पियोन को पियोन बोलना ज्यादा पोलाइट नहीं है, तो मैंने उसका नाम लिख दिया है। आप ये फोल्डर राम प्रसाद को दे दीजिए, सो दैट आई कुड हैव ऑल द पेपर्स इन प्लेस बिफोर द मीटिंग।
ताकि जल्दी से वो पेपर्स मेरे पास पहुंच जाए मीटिंग शुरू होने से पहले। लास्ट में मैंने अपना नाम सौरभ लिखा है और बॉक्स क्लोज करा है। तो इस फॉर्मेट में अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्विकली रेज योर हैंड और राइट योर कमेंट इन द चैट बॉक्स। मैंने डेट और टाइम के बीच में यहाँ गैप दिया है, आप चाहे तो साथ में लिख सकते हैं, आप चाहे तो गैप दे सकते हैं, पर सैल्यूटेशन और टाइम के बीच में गैप होना जरूरी है। यस तरुण, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम हम ब्रदर को और पियोन को हमारे हिसाब से भी नाम दे सकते हैं ना? हाँ हाँ, मेरा भाई का नाम सिद्धार्थ है इसलिए मैंने सिद्धार्थ लिख दिया है। आप जो चाहे नाम दे सकते हैं, आप पियोन को पियोन भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट सिंस मैसेज ओपन होता है तो इसलिए मैंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट पियोन का नाम लिखा है। आप चाहे तो सिंपल नाम लिख सकते हैं। Please give that folder to my peon so that I can have the papers in the before meeting. आप चाहे जो लिख सकते हैं नाम का, जो क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है वो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है सौरभ तो आपको सौरभ ही लिखना होगा। इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूज करने के लिए कंपनी का नाम दे रखा था। आपको आप सोचो कि जो लिखा है वो सब लिखना होना चाहिए तो आप कंपनी का नाम लिखोगे। अरे आपके ब्रदर को तो पता है ना आप किस कंपनी में काम करते हैं, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको नहीं लिखनी है। जो आपके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसी को पिक करेंगे। तो कंपनी का नाम मैसेज में डालने की जरूरत नहीं है। जो हर चीज जो क्वेश्चन में लिखा है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यूज योर ओन ब्रेन। आपके अपने भाई को पता होगा कि आप कहाँ काम करते हैं, तो वो उसके ऑफिस का नाम का मेंशन जरूरत नहीं है। तो बहुत सोच समझ के देखिए कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आपको क्या पिक करना है और किस तरीके से करना है काम। So we have completed 2 exercise today, B23 and B24. ये दोनों एक्सरसाइज आपकी वर्कबुक में कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी ग्रामर कॉपी में भी कंप्लीट होनी चाहिए। Today's homework is do your exercise B23 and B24. So this completes today's class. We'll meet in the next class. Thanks a lot for listening so patiently and remembering the message from last year's classes. Very good. Thank you, sir. Thank you, class. Please be very safe.